Guess what? You got admitted in a medical school. It's your first class of MBBS, and the professor goes like, "Congratulations, you made it. But why medicine?" And you go like, "Because I want to help people." And let me tell you, this is probably the worst answer you can give to anyone. Let me break it for you. You want to help people, why? Because helping others give you happiness. It's mean you want happiness for yourself. And what if you don't like the whole clinical experience, the practice? And what if you are a gunner and not a team worker? Then the whole thing make it worse for you. Sometimes the whole idea of something is more glamorous than the actual thing itself. Let me give you my example. When it was my first day at medical school and our professor asked why medicine, I think 80 to 90% of the people said because their parents wanted them to be a doctor. Some said because they want to be rich, and some said because it feels good to be a doctor. So in this video, I'll go through 5 good reasons and 5 bad reasons to get into medicine. Because reasons keep us going and we all need to have good reasons in our life. At the age of I think 18 years old, आपके पास कोई reason नहीं है तो it's completely okay. Most of the people के पास कोई reason नहीं होती. But we need to develop that. Because it is extremely important to have a satisfactory and enjoyable process in the end. Let's start with the 5 bad reasons first we should keep in mind. Number 1, if you don't like exams. Well, literally MBBS में बहुत exams होते हैं. Like stages, sub-stages, stand-ups, prof, class tests, assessments, practicals, और उसकी it's like back-to-back exams. And if you take it to your head तो आप बहुत जल्दी exhaust हो जाएंगे. MBBS is like a marathon. ये sprint की तरह नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा. You have to adapt to it. You have to see how things work. So if you are not a person who like back-to-back exams, then it is not a good reason to get into medicine. Reason 2, if you are coming for money. Well, money do matter in a lot of things, but it should not be your main reason to get into medicine. Because 5 years of MBBS, 1 year of house job and 4 to 5 years of specialization make it 11 to 12 years. आप 18 years की एज में MBBS में आते हैं and 30 to 32 year की एज में आपकी specialization complete होती है. So it's like आप अपनी एज के golden years MBBS में spend कर रहे हैं and still you don't earn a lot of money in Pakistan. It's like you have to see the bigger picture rather than short term benefits. So आप सिर्फ पैसे के लिए MBBS में आ रहे हैं तो you should better pursue business because you have to love the process in it. Reason 3, if you don't like learning and you are not a science person. Well, MBBS में there are tons and tons of books जो आपने बिल्कुल cram print नहीं होती हैं which are loaded with information. इसके अलावा a doctor's life is like a continuous study. इस तरह नहीं है कि आपने 5 साल MBBS पढ़ा उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेटेस्ट से लेटेस्ट रिसर्च होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन आती है एंड यू हैव टू कीप अप विद दैट. आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है इवन इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस. सो इट्स लाइक कि अगर आपको इतना ज़्यादा पढ़ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग टाइप पर्सन आप नहीं हैं तो यू शुड कंसिडर योर डिसीजन बिकॉज इट इज़ लाइक द वे इट इज़ एंड यू हैव टू अडेप्ट टू इट. रीजन फॉर इफ यू आर अ वोलेटाइल पर्सन. वेल, देयर इज़ अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल दैट अप्लाइज इन मेडिसिन दैट हार्ड वर्क विंस ओवर इंटेलिजेंस. And there is a lot of memorization in MBBS rather than critical thinking. आप किसी भी सीनियर मोस्ट डॉक्टर से पूछेंगे what is the single most quality that requires to be a good doctor, तो ऑलमोस्ट सभी यही कहते हैं कि you should be determined and you should be consistent. So अगर आप consistent नहीं हैं तो it is not a good reason to get into medicine because बहुत long duties होती हैं, shifts होती हैं in the hospital and you have to do it. It's not like that कि let's quit, मैंने आज duty नहीं करनी. You have to do it and you should keep in mind before getting into medicine. And reason 5, if you hate stupidity. Well, in medicine, you are learning about human anatomy, human psychology, human behaviors, and generally all about humans. So, एक normal इंसान comparison में आपको बहुत ज़्यादा information होती है about the human interactions generally. In a clinical practice, बहुत ज़्यादा लोग आके आपसे unnecessary questions करके आपको irritate कर सकते हैं. So, you have to be very patient in it. You have to keep up with that. And it is a thing कि आप with the passage of time सीख लेते हैं, adapt कर लेते हैं. लेकिन आपको एक mind में ज़रूर होना चाहिए कि इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा जिनका मेंटल या इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आपकी है. सो आपको बड़े पेशेंटली उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनको एजुकेट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन इट. नाउ कम टू द 5 गुड रीजंस टू गेट इनटू मेडिसिन. बट बिफोर दैट लेट्स आंसर दैट व्हाई मेडिसिन. इन माई ओपिनियन दिस क्वेश्चन इज नॉट टू जज योर कॉम्पिटेंस और योर एबिलिटी. इट इज़ सिंपली टू जज यू एज अ पर्सन. लाइक मुझसे भी पूछे व्हाई मेडिसिन एंड मैं उसको ये आंसर करूँ कि मैं जब 8 या 10 साल का छोटा था एंड मेरे एल्डर्स में कोई बीमार हो गया एंड मैं हॉस्पिटल जाता था उनको लुक आफ्टर करने एंड तब मैंने देखा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इन वाइट कोट्स, स्टेथोस्कोप, वो उनका ध्यान रख रहे हैं, नर्सिस उनका टेक केयर कर रही हैं एंड वो मुझे काफ़ी ग्लैमरस लगा एंड मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा. सो अगर मैं ये आंसर करूँ किसी को तो इट इज़ सिंपली रिफ्लेक्टिंग माई स्टोरी, माई पर्सनल एक्सपीरियंस
एंड जब किसी से भी ये क्वेश्चन किया जाए तो उसका बेस्ट आंसर यही बनेगा जब कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई अमेजिंग आंसर रिक्वायर नहीं होता कि भाई मैं डॉक्टर इसलिए बन रहा हूँ कि मैं ये करूँगा या फिर मैंने बहुत तीर मार देना एंड स्टफ लाइक दैट। बेसिकली इसका बेस्ट आंसर ये होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे या कोई स्टोरी बताए जो उनसी आपसे रिलेटेड हो। सो आपसे में से कोई मेडिकल स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, let me know your reason or your story in the comment section. I would love to read that. The first good reason to get into medicine is you love learning and you have an inquisitive mind. Just like the people who go to space to explore the world beyond it. Same way आप human nature को explore करना चाहते हैं. You really want to know कि humans वाकई monkey से evolution होके बने हैं या फिर उनका genetic code है वो वाकई evolution से बना है या किसी इंसान ने बनाया है. Genetic code में evolution होती है. इस टाइप के questions, human anatomy, human nervous system, human behavior, इस तरह की सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स ढूंढना चाहते हैं एंड यू वांट कि आप इन द प्रोसेस ऑफ इट डूइंग सो आपको पैसे भी मिलें एंड आप एक तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजारें। सो अगर इस तरह का आपका माइंड है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो इज़ रियली गुड रीज़न टू गेट इनटू मेडिसिन। द सेकंड गुड रीज़न टू गेट इनटू मेडिसिन इज़ द इंट्रिंसिक नोबल कॉज इन इट, लाइक यू स्पेंड योर एंटायर लाइफ सेविंग लाइव्स। एंड दुनिया के सब रिलीजन ने इसको एक तरह से बहुत अप्रिशिएट किया एंड नोबल प्रोफेशन कहा हुआ है इसको। Like you are not fixing any computer, you are fixing humans, which is the crown of creation. So if you want to pursue a profession and during the process आपको blessings भी मिले, so it is a very good reason to get into medicine. The third good reason to get into medicine is you want long-term stability. There is no retirement date for a doctor. एक डॉक्टर जितना सीनियर होता है उसकी एज जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही अच्छा डॉक्टर कंसिडर किया जाता है एंड उसका पेशेंट के साथ जो ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा लेकिन आप कोई भी दूसरा प्रोफेशन देख लें उसमें एक स्पेसिफिक एज लिमिट होती है, उसके बाद एक प्लेटू आ जाता है, उसके बाद वो ग्राफ डाउनवर्ड चला जाता है। बट इन अ डॉक्टर्स केस जितना डॉक्टर एज करता है वो उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ जाता है उसका एंड ही ट्रीट पेशेंट टिल हिज लास्ट ब्रेथ, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि काफ़ी अच्छी चीज़ कंसिडर की जाती है कि आप इतने ओल्ड एज हैं, आप बीमार हैं लेकिन आप फिर भी दूसरों को ट्रीट कर सकते हैं। फिजिकली नहीं लेकिन आप अपनी बातों से आपको जितना नॉलेज है आप कन्वर्सेशन से ही बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज़ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। द फोर्थ गुड रीज़न टू गेट इनटू मेडिसिन इज इट गिव्स यू फ्रीडम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। वेल काफ़ी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है बट इन माय ओपिनियन इफ अ पर्सन कैन डू मेडिसिन ही कैन डू एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। सो मेडिसिन में आके आपको एक स्टेबिलिटी की श्योरिटी मिल जाती है कि यू विल बी अ डॉक्टर। सो आप काफ़ी डिफरेंट अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू रियली गेट टू नो योर सेल्फ बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो एक्टर भी हैं, जो न्यूज़ एंकर भी हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर CSS भी करते हैं। सो इफ़ यू कैन शाइन इन मल्टीपल प्रोफेशन सो आई थिंक इट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड। एंड द फिफ्थ गुड रीज़न टू गेट इनटू मेडिसिन इज इट इज़ वेल रेपुटेबल एंड डॉक्टर्स हैव गुड रेपुटेशन। वेल आई एम गोइंग टू गिव सम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हियर बिकॉज आई रियली वांट टू गिव माय ओपिनियन ऑन इट। हमारे पाकिस्तान में हर बच्चे को यही कहा जाता है या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर, एंड जो लोग मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में नहीं जा पाते उनको लेस इंटेलिजेंस समझा जाता है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी इफेक्ट होती है, जो कि काफ़ी बैड कल्चर है। आई थिंक इसको ख़त्म होना चाहिए। माई ओपिनियन कोई प्रोफेशन शाइन नहीं करता, जो इंसान है वो खुद शाइन करता है। एंड आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएँ, आपने शाइन करना है तो आप शाइन करेंगे, सिर्फ मेडिसिन या इंजीनियरिंग नहीं है। सो इफ़ यू डिड नॉट मेक इट टू मेडिसिन इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशन है जिसमें आप शाइन कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ, यू हैव टू फाइंड आउट योर पैशन। हमें आर्ट्स को भी और दूसरे प्रोफेशंस को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी मेडिसिन और इंजीनियरिंग को देते हैं। एंड आई थिंक किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने का फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप उसके बारे में एजुकेट करें, अवेयर करें। जो सा मैंने इस वीडियो के थ्रू जितना मैं कर सकता था मैंने किया। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक एंड एंजॉय माई कंटेंट, a sub would be amazing. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye.